Hello there, welcome back to my channel. And today, whatever is gonna come in my mind, I'm gonna speak. Okay, and this is what I'm gonna explain today. I'm gonna explain that if I can speak English, so why can't you? If I am able to understand English, I am able to make mistakes in English, and I am able to speak in front of the camera, in front of all of you guys, so why can't you? Firstly, I have just started to make mistakes in English when I was just learner. So if I can make mistakes and I can learn by making mistakes, so why can't you? Okay guys, I would say that when I was learner, sorry, I am learner right now. I am a learner, okay? But when I was just beginner in English, so at that time I used to think that English is too hard for me. I can't learn English. I would not be able to speak in English in my future because now I'm thinking that uh, some of the vocabulary words which I can't learn, those are very difficult for me to speak. So that is why I think that I'm not gonna learn English at all. But today I am speaking just by putting some efforts. So if I can learn English by putting some efforts, so why can't you? You can also learn English. What do you have to do? You just should have a burning desire in yourself. Okay? Now, just give me. I'll give you some examples. Okay? Let me give you some examples related to this. For example, Hmm, let's go back in the past time, okay? For some time, let's go back in the time, okay? For example, when you were a kid, did you know about the walk properly? No. When you were a kid, you didn't know how to walk properly. So what you did? Firstly, you started to stand up. You started to try to stand up. Then you fell down. Then you again stood up. Then you again fell down. Then once again you stood up and fell down. Then you stood up and start walking. And now you are walking like a pro. Okay? This is what you have to do in English. If you want to learn English and if you have a burning desire in yourself, and if you think that I want to learn English, I don't know how I will learn, but somehow I will learn. I will manage it. So no one gonna stop you. No one will never stop you. Okay? What do you have to do? You just have to put your efforts. You have to make mistakes. Mistakes are the proof that you are learning something. Okay? And if you are thinking that I can understand English, but English is not my thing. I can't learn English. I can't speak in English. It's not gonna be okay for me if I would speak in English. I wouldn't pronounce any word in the in a right way. So I'm not gonna learn the speaking of English. But no, it's not right thing. If you are making mistakes, so you can learn English. Okay? Because mistakes are the evidence. Mistakes are the evidence that you are learning something. Okay? So that is why you have to create evidence if you want to learn English. Okay, firstly, create evidence, create proof that you are going to be a good speaker in your future. Then now let me give you some second example. Today I'm give you some those kind of examples. I will give you some those kind of examples which would be related to your life. Okay, first example is also related to your life, that was related to walking. Now second is related to eating. So when you were a kid, did you know how to eat food properly? Did you know that how could you eat food properly by spoon or by your hands? You didn't know. Firstly, you tried that. Okay? Firstly, your parents used to teach you that how can you eat. Then would you be able to eat properly eat food properly by in just 2 or 3 days? No, you wouldn't that much able in that time. But
you practiced a lot. For example, when you started to eat, you put the food on your nose when you were a kid, or on the floor, okay, or on your whole mouth, okay. So when we were kid, we used to do these things because we don't know how to eat food properly, but we have learned, okay. We have used some techniques our parents used to us, that our parents used to teach us that how can we eat food properly. They taught us the table ethics, okay. So if they can taught you, if they can taught us how to walk, how to ride a bicycle, how to eat food properly, how to talk with someone in a good way, so why can't you learn English? You can use YouTube as your parents. You can use YouTube for learning English. If your parents can teach to you walking, riding, eating, and some other good manners, so why can't you learn by yourself by the use of YouTube? Okay, YouTube is the best source for learning English. And don't think that I can't learn English. You can. If you can dream it, so you could achieve it. Okay? And you should not have any kind of negative thought in your mind, because negative thoughts are like black, kind of black magic for us, okay. So don't think that I can't learn English, I can't speak in English, okay. Even I was not able to speak in English. I was from Punjabi medium. I have completed my whole education in Punjabi medium till the 12th, okay. I completed my 12th in Punjabi medium, okay. So I would say that if I am able to speak in English, so why can't you? I have started prepared to speak in English after my 12th. And now I am able to speak in English. I could have a conversation with anyone. I'm not saying that I'm fluent enough in English. I'm a very good speaker in English. But I would say that I am that much able that I can have a conversation with anyone. Now, whenever I talk with anyone in English, they just feel that, oh, how she is speaking in English. And it's a very strange thing for them. मतलब वो ये सोचते हैं कि इसके पास कोई गुड इन्वायरमेंट नहीं है इंग्लिश लर्न करने के लिए, इसके पास कोई गुड पार्टनर नहीं है इंग्लिश बोलने के लिए, फिर भी ये इतना अच्छा इंग्लिश कैसे बोल रही है। अगर हमारे यहाँ पर इंग्लिश में हम बात कर सकते हैं तो इट मीन्स हमारे यहाँ पर बहुत हम इंटेलिजेंट है। मतलब विलेजेस में ऐसा ही होता है कि अगर कोई इंसान इंग्लिश में बात कर सकता है ना, तो वो इंटेलिजेंट, वो इंसान लोगों के तरीके से, लोगों के अकॉर्डिंग बहुत इंटेलिजेंट है। तो अगर आप इतने इंटेलिजेंट भी हो गए ना कि आप किसी के सामने एबल हैं बोलने के लिए इंग्लिश में, तो आई वुड डेफिनेटली से दैट यू वुड बी अ गुड स्पीकर इन योर फ्यूचर। यू वुड बी फ्लुएंट इन योर फ्यूचर। मतलब आप अगर एबल हो गए इंग्लिश में बोलने के लिए, इंग्लिश में स्पीकिंग करने के लिए किसी के भी सामने, और इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन करने के लिए किसी के भी साथ, तो डेफिनेटली मैं ये कहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फ्लुएंट स्पीकर बनेंगे अपने फ्यूचर में, अगर आपने प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ा। बट क्या करना पड़ेगा आपको? सबसे पहले एफर्ट्स तो पुट करने ही पड़ेंगे ना। एफर्ट्स ज़रूरी हैं जो कि हमको पुट करने चाहिए अगर हमें कोई चीज़ लर्न करनी है तो। ओके गाइस, सो बस मैं यही समझाना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान ऐसा है जिसने शुरू से लेकर मतलब अपनी ज़्यादातर अपनी एजुकेशन अपनी मदर टंग में की है, जैसे कि उसकी मदर टंग हो गई हिंदी, पंजाबी, मराठी या कोई भी और लैंग्वेज जो इंग्लिश के अलावा हो, अगर उसने उस लैंग्वेज में अपनी 12th तक की पढ़ाई की है और उसके बाद डायरेक्टली उसे इंग्लिश में सभी अपने सिलेबस करना पड़ेगा नेक्स्ट, जो कि उसने करना है अपने कॉलेज में, तो डेफिनेटली उसके लिए थोड़ा सा तो डिफ़िकल्ट होगा ही। न्यू इन्वायरमेंट में फ़िक्स होना, न्यू सब्जेक्ट्स के साथ अपने माइंड को फिक्स करना, न्यू सब्जेक्ट्स को अंडरस्टैंड करना, वो भी इंग्लिश में, होता है डिफ़िकल्ट। बट हाँ,
अगर आप इंग्लिश में बोलना जानते हैं, इंग्लिश का बेसिक्स समझते हैं और इंग्लिश को अंडरस्टैंड करते हैं, तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होने वाली। तो इसीलिए ट्राई कीजिए आज से ही, अभी से ही, कि आप इंग्लिश को लर्न करना शुरू कर दीजिए। ओके गाइज, अगर आपको सिंपल इंग्लिश भी आती है, सिंपल इंग्लिश में बोलना आता है, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप सिंपल इंग्लिश को बोलकर, जानकर बस उसे वहीं पर ख़त्म कर दीजिए, आगे बढ़िए। अगर आप सिंपल इंग्लिश बोल लेते हैं, मतलब बेसिक्स में सब कुछ आपको आता है, देन ट्राई कीजिए कि आप इंटरमीडिएट लेवल पर खुद को फिक्स कर सको। अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पर हो ना, तो उसको एडवांस लेवल पर लेकर जाओ। मतलब लेवल जो है आगे आगे बढ़ाते जाना है। अपनी प्रैक्टिस को स्टॉप नहीं करना, क्विट नहीं करना, खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो, और यही चीज़ आपको हेल्प करने वाली है। अगर आप कोई अच्छी जॉब चाहते हो, तब भी आपको इंग्लिश बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहते हो, वहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स, मतलब मेनली सब्जेक्ट्स ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं, है ना। तो अगर आप न्यू सब्जेक्ट्स के साथ फेमिलियर होना चाहते हो, तो इंग्लिश को अच्छे से समझने की कोशिश करो, क्योंकि ज़्यादातर सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं, तो आप उन सब्जेक्ट्स को भी ईजिली अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आप कोई साइंटिफिक फील्ड में जाना चाहते हो, तब भी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, है ना। और अगर आप मैथ्स में जाना चाहते हो, तो मैथ्स भी आगे चल कर इंग्लिश में होता है। फिर इंग्लिश तो इंग्लिश में होती ही है। अगर आपको अपनी कोई कम्युनिकेशन स्किल्स के रिलेटेड कोई सब्जेक्ट लेना है, तो वो भी इंग्लिश में होगा, है ना। चलो, कम्युनिकेशन स्किल्स का तो ऐसा होता है कि हिंदी में हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे वैसे अलग से होती हैं, इंग्लिश में अलग होती हैं, पंजाबी में कैसी होती हैं, मतलब वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स उस लैंग्वेज में कैसी है ना। हम कैसे किसी के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं उस लैंग्वेज में किसी के साथ। बट अगर आपकी इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होगी, तो आप नॉर्मली जो इंसान फ़ॉरेन से आते हैं, आप उनके साथ ईजिली बात कर सकते हो। अगर आप फ़ॉरेन में पढ़ने जा रहे हो, अगर आपको इंग्लिश आती है, तो आप इजीली उनके साथ कम्युनिकेट कर पाओगे, इजीली फ्रेंड्स बना पाओगे, आपका फ्रेंड सर्कल वाइड होगा। अगर आपको इंग्लिश आती है, अच्छे तरीके से उनके इमोशंस को समझ पाओगे अगर वो इंग्लिश में कुछ आपसे कह रहे हैं। मतलब ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि इंग्लिश आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। मैं ये नहीं कह रही कि अपनी मदर टंग को साइड में रख के सिर्फ इंग्लिश पर ध्यान दो। अपनी मदर टंग में भी अपने लोगों से बात करनी है, वो तो ज़रूरी है ना। बट इंग्लिश को भी लर्न करो, क्योंकि इंग्लिश आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक फील्ड में कोई इंटरव्यू देना है, तब भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इंटरव्यूज़ ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमको हिंदी में पूछे जाते हैं, बट ज़्यादातर इंटरव्यूज़ इंग्लिश में ही होते हैं, है ना। तो ट्राई कीजिए कि इंग्लिश को ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करिए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को अपने माइंड में बिठाइए। इंग्लिश के रिलेटेड कोई वोकैबुलरी वर्ड कर लिया याद, उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करो। अगर वो आपके सिर्फ माइंड में है, तो पैसिव है वो। अगर आपने उसके रिलेटेड कोई सेंटेंस बनाया, 3 से 4 बार बोला, और 3 से 4 सेंटेंसेस उस वर्ड को यूज़ करके बनाए, तो वो वर्ड आपके माइंड में एक्टिवेट हो जाएगा। आप इजीली उस वर्ड को लर्न कर लोगे। सो ऑल इन ऑल मैं यही कहना चाहती हूँ कि ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। If I can speak English, I am able to speak in English, I am able to have conversation with anyone, so why can't you? Just create environment. If you do not have good environment, create your own environment. If you do not have any partner, try to be your partner. Don't try to find any partner. Try to be your partner. Okay, मतलब खुद का ही पार्टनर बन जाइए. That's all for today, and if you have learned something from this video, so please like this video and share this video and subscribe my channel and share this video with those kind of individuals who really want to learn English but they think that they can't speak English. Okay, जब आपने चलना सीखा था, तो तब क्या आपने कहा था, oh walking is too hard for me, I can't learn walk. आपने ऐसा तो नहीं कहा ना। आप गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे, बट आपने चलना तो सीख लिया, है ना। इसी तरीके से खाना होता है। खाने के वक्त क्या होता है, जब हम बच्चे थे उस टाइम पे हमने कैसे खाना सीखा,
हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया। सबसे पहले हमने नहीं पता था कि कैसे अच्छे से खाना है। कभी हम खाने को अपने नोज़ पर लगा लेते, कभी अपने होठों के साइड्स पर, कभी अपने गालों पर, मतलब हम अपने आप को पूरा खाने से ऐसे ख़राब कर लेते थे सारा फेस, है ना, जब बचपन में थे। बट वी हैव लर्नड इट, पर हमने इस चीज़ को लर्न कर लिया। देन नाउ वी आर एबल टू ईट लाइक अ चैम्पियन, मतलब हम अब एबल है कि हम चैम्पियन की तरह खा सकते हैं। ओके, प्रो की तरह वॉक कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द थिंग दैट यू हैव टू डू इन इंग्लिश। अगर आप रियलिटी में लर्न करना चाहते हैं, आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर है इंग्लिश को लर्न करने की, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप गिरोगे फिर उठोगे। अगर कोई गलत स्पेलिंग बोल दिया, उसको दोबारा से लर्न कर लो, है ना। कोई गलत वर्ड को किसी गलत तरीके में प्रोनाउंस कर दिया, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन को लर्न कर लो। कोई सेंटेंस स्ट्रक्चर में गड़बड़ी होगी कि इस सेंटेंस को गलत स्ट्रक्चर में बोला, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीख लो, टेंसेस सीख लो। मतलब इंग्लिश को पूरा डेडिकेशन के साथ सीखो, दिल से सीखो, इंटरेस्ट से सीखो, तभी ही आपको इंग्लिश आएगी। अगर आप अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो ना, तो तब इंग्लिश को लर्न करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इंग्लिश को पूरा दिल से सीखना है, पूरा दिल से, दिमाग से भी सीखना है, बट पूरा दिल से सीखो कि हाँ मुझे ये लर्न करनी है। ओके गाइस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।